है तो पूछिए, जो भी जर्नी था इसका, और जो भी पूछना है, और अपना बारे में फिलिम्स का कैसे तैयारी करना है, अभी सामने में आप लोग का एग्जाम है उसके बारे में बताएगा। तो जो भी चीज़ चाहिए, अब सौरभ, पहले सौरभ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सौरभ अभी ज्वाइन किया, ये भी ज्वाइन करके आया है और इसका भी ज्वाइनिंग श्रेषी का बाकी है। तो अब ये 15-20 दिन में हो जाएगा। तो ये तीनों बैंकर आपके सामने में है। अब थोड़ा सा सवाल বলতে হবে সৌরভ, ফার্স্ট সৌরভ দিয়ে স্টার্ট করতে হবে। সবাইকে এটাই বলবো, এখন যেটা করছো খুব মন দিয়ে পড়তে হবে সবাইকে। এই যে মানে কম্পিটিটিভ এক্সামের পেপারগুলো যতটা টাফ হয় ততটা কিন্তু যখন জিনিসটা গ্রিপে চলে আসবে তখন ব্যাক টু ব্যাক এক্সাম ক্লিয়ার করতে থাকবে। আর প্রিলিমসটা নিয়ে হলো এতটাই মানে কনফিডেন্ট থাকতে হবে যে প্রিলিমস যেন কোনো পরীক্ষার না আটকায়, যা হবে মেন্সে গিয়ে একটু চাপ পায়, প্রিলিমস যেন যেভাবে হোক সবসময় ক্লিয়ার হয়ে যায়। তো তার জন্য ম্যাথস রিজনিং রোজ প্রিলিমসে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং মক টেস্ট দিতে হবে, তার সাথে প্রথমে প্র্যাকটিস করতে হবে সকালবেলা। প্রিলিমসের প্রত্যেকটা মানে টপিক ওয়াইজ প্র্যাকটিস করতে হয়, ম্যাথস রিজনিং রোজ মানে টাইম ধরে প্রিলিমসের পাজেলগুলো করতে হয় যাতে কোনো সময় পাজেলে না আটকায়। কারণ প্রিলিমসের পেপার হলে এমন জিনিসটা ইজি, যদি একবার আটকে যায় একটা সেকেন্ডের জন্য মানে ব্যাক টেস্ট করার জায়গা থাকে, একবার ব্যাক টেস্ট করা মানে আমার ওখানেই পুরো টাইম বেরিয়ে গেল, নেক্সট 5টা কোশ্চেন সলভ হবে না। তো সেইগুলো প্রিলিমসে মাথায় রাখতে হবে। আর ম্যাথসের রিজনিংয়ে প্রচুর অ্যাকুরেসি রাখতে হবে প্রিলিমসে। আর ম্যাথসের জন্য তো প্র্যাকটিস করতেই হবে প্রচুর। মেন হলো ম্যাথসের প্র্যাকটিস করতে হবে। মেন্সের জিনিসগুলো হলো মক টেস্ট সপ্তাহে 1টা কি 2টো ফুল লেন্থ মক দিতে হবে। আর মেন হলো প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে, মানে সেট ধরে ধরে। ম্যাথসের হলো রোজ 1.5-2 ঘন্টা মেন্স, রিজনিংয়ের 2 ঘন্টা মেন্স, এরকমভাবে সলভ করতে হবে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো রেগুলার পড়তে হবে রোজ। সকালে 2 ঘন্টা নতুন জিনিস পড়বো, সন্ধ্যেবেলা হলো আগের দিনেরটা পড়বো, প্লাস সকালে যেটা নতুন পড়লাম সেটাও রিভাইজ করতে হবে। আর সপ্তাহ শেষে হলো মানে একটা সপ্তাহ টার্গেট রাখতে হবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেন আমি 1 উইক 3 দিন 4 দিনে কভার করে দিই। আর বাকি যে 3 দিন থাকছে সপ্তাহে, সেই 3 দিনে হলো সেই উইকটা পুরো রিভাইজ করি আর আগের উইকটাও করি। তাহলে এরকমভাবে একটা সপ্তাহ আমার 2টো উইক করে রিভাইজ হয়ে যায়। তো এই জিনিসগুলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে করতে হবে। আর ইংলিশ তো প্র্যাকটিসের জিনিস, এইরকম এইগুলো। মেন পয়েন্ট হচ্ছে নিজের স্ট্রঙ্গার পয়েন্টকে যাতে স্ট্রংগেস্ট বানানো হবে, এটাই টার্গেট রাখা উচিত। তাহলে মোটামুটি যেটা ম্যাথস যার উইক থেকে আরো বাড়াতে হবে। কি বলবো, आकाशदीप पे कि आकाशदीप के साथ क्या था कि आकाशदीप का कोई डिसीजन नहीं था कि हमको बैंक में जाना है कि एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, इसका कोई डिसीजन नहीं था। ये क्या था कि सब चीज़ का प्रिपरेशन करता था। एसएससी वो भी पास करता था, आपको बहुत सारा एग्जाम एसएससी टाइप का पास किया, और रेलवे का एग्जाम वो भी देना है, बैंकिंग का भी देना है। तो ये एक ऐसा था कि सब कुछ में इसका ग्रिपिंग था। बैंकिंग में उतना ही ग्रिपिंग था जितना कि एसएससी और रेलवे में ग्रिपिंग था। और अभी मतलब जिस दिन इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उस दिन एक इंटरव्यू भी था दिल्ली में, वो नहीं जा सका क्योंकि उसी दिन इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बढ़ गया। तो इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मैथमेटिक्स इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जिसके दम पे ये फिर उसके बाद करंट अफेयर्स तो दोनों में लगता था, एसएससी रेलवे में और बैंकिंग वाले में, वहाँ से इसका प्लस पॉइंट हो गया। ये अपना मतलब जो भी है सब मेहनत के दम पे, बहुत मेहनत के दम पे, ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़ने से हुआ, एक सिस्टम वाइज पढ़ के और प्लस ग्रुपिंग करके यहाँ पे एक ग्रुप हो गया। ग्रुप होने से क्या हो बेनिफिट, ये बहुत ग्रुप में क्या होता है ना कि देखिए दोस्ती हम बार बार बोलते हैं बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन उसको अच्छे ढंग से लीजिए। अब उसमें अगर आप लग जाएंगे कि चैटिंग करने व्हाट्सएप में, तो फिर वो गलत चीज़ है। अगर ये अच्छा चीज़ अच्छे तरीके से लेंगे तो ये लोगों का ऐसा ग्रुपिंग था, जैसे ये लोग का क्या था, आकाशदीप का ये सुरुचि है, फिर ये लोग का ग्रुप था, और भी मिलाएंगे अभी आधा है सब, छुट्टी में जब आएगा तो मुलाकात होगा। तो ग्रुपिंग ऐसा हुआ है कि सारे ग्रुप के ही बैंकर है, मतलब कोई बचा नहीं, और एक दो जो बचा हुआ है वो इस बार निकल जाएगा। तो एक ग्रुपिंग करने से ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। डिस्कशन होता था, भयानक डिस्कशन, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जीके का, सबका डिस्कशन। तो वही चीज़ करना है, पॉजिटिव वेव्स में लेना है। और श्रेषी के बारे में बता दें कि श्रेषी का मतलब इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग, उसके बाद इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होने के बाद धीरे धीरे करके रीजनिंग मैथ स्ट्रॉन्ग शुरू हो गया, और जब स्ट्रॉन्ग शुरू हो गया तो बस रिजल्ट आना शुरू हुआ। और पहला ही पीओ था ना, फर्स्ट ही पीओ था जिसमें कि प्रीलिम्स पास की, मेंस पास की, और उसके बाद फाइनल उसी पीओ में लगा दी। क्लिनिकल माने क्लिनिकल होছিল मेंस দিয়েছিলাম না, আমার সেকশনাल কাট অফ क्लियर है। क्लिनिकल में तो देखिए तो ये होता है ना, एक चीज़ जान लीजिए कि हम बार बार बताते हैं ना कि जब दो चीज़ जहाँ लिखा हुआ वही होगा। क्लिनिकल में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, लेकिन पीओ का फाइनल हो गया। तो मतलब क्या था कि नसीब में पीओ लिखा हुआ था, क्लिनिकल लिखा हुआ नहीं था, तो सीधा मतलब क्लिनिकल नहीं हुआ। तो कभी कभी क्या होता है ना कि छोटा छोटा चीज़ में लोग निराश हो जाते हो, नहीं हुआ मेरा क्लिनिकल। तो एक ही चीज़ जान के रखें कि क्लिनिकल नसीब में नहीं लिखा हुआ। जैसा मेरा हम बता रहे हैं कि हम आज तक जीवन में क्लिनिकल एग्जाम पास ही नहीं किया, आज तक नहीं पास किया। हम 28 ईयर तक स्ट्रगल के जीवन में, लेकिन 28 ईयर तक में हम सिंगल क्लिनिकल का एग्जाम पास नहीं कर पाए। क्यों?
तो मेरा नसीब में पीओ बनना लिखा था, और हमने पीओ जब पास किया तो 14 बैंक का पीओ पास कर गया। हमारे समय में बीएसआरबी होता था, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो नसीब में क्लिनिकल नहीं था, पीओ बनना लिखा था। तो इसीलिए जब जो कुछ लिखा रहेगा वो ठीक आएगा, क्यूमुलेटिव होकर एक बार निकल चलेगा। वही बात है एग्जाम्पल में सेक्शनल कटअप नहीं पास हुआ, पीओ में फाइनल हो गया। तो ये सीएससी के साथ में प्लस पॉइंट इंग्लिश था, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग हो गया स्ट्रॉन्ग, और जीके, तो जीके मतलब पढ़ के सेक्शनल कटअप पास कर गए और इधर इतना मार्क्स उठा दी कि बस आलू पीओ हो गई। तो यही और यही तीनों तरीके से आपका ये स्ट्रगल। সৌরভ কতদিন লেগেছে পুরো মানে প্রিপারেশন করতে? আমি 2023 সালের ফেব্রুয়ারি এন্ডে আপনার কাছে ভর্তি হয়েছি, তো 23 সালটা ফার্স্ট অ্যাটেম্প পুরো দিয়েছিলাম আর 24 সালে সেকেন্ড অ্যাটেম্পে ক্লিয়ার করেছি। আকাশদীপ কোন ইয়ার এখানে এসেছিল? আমার 24 বছর, আমার টোটাল 3 বছর। 3 বছর। আর এসেছিল 2023 এর মে, এপ্রিল মে। আপনি মানে মোটামুটি 2 বছর লেগেছে, 2 বছরের ভিতরে। না মানে আমার 24 এর প্রেজেন্স কখন হলো তখন, মানে প্রিপারেশন বেসিক্যালি 1 বছর, আর তারপরে এক্সাম তো স্ট্রেচ করে করে মেন্স 2 বছর, 2 মাস, তারপরে ইন্টারভিউ 2 মাস করে করে पीछे। मतलब एक ओवरऑल प्रिपरेशन में आपका 1.5 से 2 साल में एकदम पूरा का पूरा आप लोग तैयार हो जाते हैं। और सौरभ का बहुत सारा एग्जाम भी हुआ था, आरआरबी पीओ में हुआ था, तो आरआरबी पीओ ज्वाइन नहीं किया, पीएनबी क्लियर करने ज्वाइन किया। इसके बाद एसपीएफ प्रीलिम्स निकला, लेकिन वो मेंस देने नहीं गया, बोला अब नहीं जाना है। इसमें पीओ में ज्वाइन, पहले पीओ में ज्वाइन करना था, फिर बाद में पीओ का माइंड चेंज हो गया, अभी पीएनबी में नेशनलाइज में गया है। ये आपको जर्नी में कम से कम मतलब पूरी तरीके से पढ़ने से आपको कम से कम 1 से 1.5 साल में, मतलब मन से पढ़िएगा तो पढ़ना तो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन मन से पढ़ना किसी भी चीज़ को तो 1.5 से 2 साल सफिशिएंट है अच्छे तरीके से पढ़ने से। देखिए यहाँ पे 2 से मतलब 2 3 2 3 इसी बीच में सब निकल चलता है। तो पढ़िए ईमानदारी से, मन से पढ़िए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में और 3 आ रहा है, 3 डिफरेंट बैंक का फेड मिलाएंगे। मतलब जितना भी नेशनलाइज बैंक है सब में अभी कोई ऐसा बैंक नहीं बचा जिसमें कि स्टूडेंट नहीं है। अब फिर 3 नया बैंकर्स आपको मिलेंगे, 3 डिफरेंट बैंक का। अगला वीक में वो लोग भी मिलने के लिए आ रहा है, तो मिलने के लिए आ रहा है तो फिर आप लोग को फिर उससे भी मुलाकात करवाएंगे। इन लोगों का जो सिस्टम है उस पर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, निकलेगा ही निकलेगा। और किसी को कुछ पूछना है तो सब अब चेहरा पहचान लीजिए, कहीं आपके बगल वाली ब्रांच में ही देखिएगा किसी दिन दर्शन हो गया है। इसलिए सब पढ़िए ईमानदारी से, मन से पढ़िए एकदम। कभी मतलब ऐसा पढ़िए कि अगले बैच को आप लोग में से भी यहाँ खड़ा होकर दीजिए ज्ञान, क्या ऐसे पढ़े तो ऐसे हुआ। मतलब अगला आप लोग में से यहाँ खड़ा होना है, खड़ा होकर फिर बोलना है कैसे हुआ था, ऐसे हुआ था। इसी तरीके से तैयार होना है। इन लोग के बैच में ही बुलाते थे दूसरे सबको, ये लोग भी ध्यान देकर सुनता था। उसके बाद देखिए फिर अब यही लोग यहाँ खड़ा है आप लोग को बताने के लिए। तो ठीक से पढ़िए, मन से पढ़िए एकदम। ठीक है, और कुछ पूछना नहीं ना किसी को?